سے بتائیں گے. ایک کا نام محسن خان، یا آپ ان کی تصویر دیکھ لیں، ان کے لائقین بھی یہاں پہ موجود ہیں. محسن خان. دوسرے ہمارے ساتھی، یہ 16 سال ان کی عمر ہے، حسن ضیاء. یہ بھی ان کی تصویر آپ دیکھ لیں. بنیادی طور پہ ہم لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں اور ہم لوگ انویسٹیگیشن بھی ڈیمانڈ کریں گے. الحمدللہ کے پی میں ہماری حکومت بھی آئی ہے اور میں خود چیف منسٹر علی امین خان گنڈاپور سے یہ بات کروں گا کہ وہاں پہ ایک امپارشل انکوائری ہونی چاہیے، اور جو لوگ اس کے ان ساتھیوں کے قتل میں ملوث ہیں ان کو کیفر اقتدار تک پہنچایا جائے. اور بات ہی آتی ہے کہ یہ صرف شانگلہ کی کہانی نہیں، پاکستان کے مختلف علاقوں میں لوگوں کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا فارم 45 لیتے ہوئے. پولیس نے لوگوں کو زد و کوب کیا، اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا معنی وہ تحریک جو انصاف کی جستجو کرتی ہو. ہم لوگوں کے قائد جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بارہ بار ہمیں ایک چیز کی تلقین کی ہے. جیل میں بیٹھے ہوئے بھی انہوں نے ایک ہی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں. وہ میں تقریباً 10 مہینے پہلے ان سے میری 1 ہفتہ پہلے ملاقات ہوئی تھی. سلام کے بعد انہوں نے سب سے پہلی چیز یہ کہی تھی کہ رول آف لا کے لیے ہم نے اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہے. ایک شخص جو کہ جیل میں بیٹھے ہوں، پابند سلاسل ہوں، آدمی خیال سوچتا ہے کہ جی وہ کسی اور چیز کے بارے میں ان کے ذہن پہ بات ہوگی. ہمارے قائد عمران خان صاحب کے ذہن میں رول آف لا ہے، کیونکہ وہی واحد چیز ہے جو کہ اس ملک کو اس کرائسس میں سے نکال سکتا ہے. جس طرح کہ میں نے اپنی تقریر جو میں نے بحیثیت امیدوار وزیر اعظم کے قومی اسمبلی کے فلور پہ بھی کی تھی، آپ ساتھیوں نے سنی ہوگی، وہاں پہ بھی میں نے یہی کہا تھا کہ رول آف لا ہونا چاہیے. اور آج ان شہداء کی بات آج پریس کانفرنس پہ بھی کر رہے ہیں اور فلور آف دا ہاؤس پہ بھی ہوگی انشاءاللہ. یہ آپ کے سامنے میں نے اس کا اوور آل پکچر آپ کے سامنے رکھی ہے. میں اپنی بہن جناب شمدانہ گلزار صاحبہ ممبر قومی اسمبلی پشاور سے ان کو درخواست کروں گا کہ وہ اس کے بارے میں آپ کو مزید ڈیٹیلز دیں، اور پھر ہمارے MP صاحبان ہیں اور یہاں پہ ہمارے باقی ساتھی ہیں. اوور ٹو یو شمدانہ صاحبہ. بہت شکریہ سیکرٹری جنرل صاحب عمر بھائی. یہ ایک ایسا تکلیف دہ چیپٹر ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم فلسطین بنتے جا رہے ہیں، ہم کشمیر بنتے جا رہے ہیں. اپنے ہی لوگ، چلو فلسطین میں تو دشمن ہے جو ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کو شہید کر رہا ہے، کشمیر میں تو دشمن بیٹھا ہے جو ہمارے بھائی بہنوں کو مار رہا ہے. یہاں کون بیٹھا ہے؟ اور ان 2 بچوں کا بائی دا وے 2 شہید ہوئے ہیں، 12 زخمی ہوئے ہیں، اور ان 2 کو سیدھے سر میں گولی پڑی ہے، سنائپر شاٹ پڑا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آئین کو تو آپ نے ویسے ہی دفن کر دیا. آرٹیکل 15، 16، 17 ہمیں بولنے کی اجازت دیتا ہے، ہمیں ایک جگہ میں کھڑے ہونے کی اجازت کرتا ہے، ہمیں اجازت دیتے کہ ہم ایسوسیشن بنائیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم جانور نہیں ہیں. ہمیں حق ہے سوچنے کا، ہمیں حق ہے بولنے کا. لیکن ان کے ساتھ جو ہوا اس وقت، یہ فسطائیت اور بربریت آپ کو ایک چیز بتا رہی ہے. ہم آپ کے گھر پہ چھاپے بھی ماریں گے، ہم آپ کے ووٹ بھی چرائیں گے، ہم جھوٹ بھی بولیں گے، اور پھر اگر آپ اس پہ پروٹیسٹ کریں گے، احتجاج کریں گے، تو ہم آپ کو گولیاں بھی ماریں گے. کجا قانون، کجا آئین؟ اور مار کس کو رہے ہیں؟ پاکستانی بچوں کو. یہ اگر پیپلز پارٹی کے ہوتے یا نون لیگ کے ہوتے، جو ایس کے، یہ پھر بھی پاکستانی بچے تھے. یہ اگر پولیس کے ہوتے، فوج کے ہوتے، نیوی کے ہوتے، پھر بھی پاکستانی تھے. ہماری عقل کہاں گئی ہے کہ ہم پاکستانی خون بہاتے ہیں ایک بندے کو نیشنل اسمبلی میں بٹھانے کے لیے؟ 6000 ووٹوں سے امیر مقام صاحب ہار رہے تھے. آپ نے نقلی فارم 47 نکال دیا، ٹھیک ہے آپ MNA بن گئے. کیا ان دونوں بچوں کا قتل بہت ضروری تھا؟ آپ کیا میسج دے رہے ہیں دنیا کو کہ پاکستانی کا دشمن ہوگا صرف ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ کے لیے؟
क्या 2 माएँ जिनकी गोदें हमने उजाड़ी हैं, आज वुमेन्स डे है, उन माओं से कोई पूछेगा कि वो 9 महीने अपने पेट में पाला, फिर उनको जवान किया, स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, और फिर उनको किसी ने ऐसे मार दिया? क्या वो पुलिस नहीं थी जिन्होंने उनको गोलियां मारी? क्या वो पाकिस्तानी नहीं थे? और इन बच्चों का गुनाह क्या था? क्या ये प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? क्या आपका आइन सस्पेंड हो चुका है? अगर हो चुका है, प्लीज एक नोटिफिकेशन करवा दे सुप्रीम कोर्ट से कि जी आइन खत्म है पाकिस्तान में, कानून खत्म है पाकिस्तान में, हम वो करेंगे जो हमारी मर्जी होगी, हम ना रंग देखेंगे ना दीन देखेंगे, जिसका दिल करेगा उसको गोली मारेंगे। और ये याद रखें, ये जो जुल्म की सुनामी होती है ना, ये रुकती फिर नहीं है, ये आपके घर में भी होगी, ये आपके घर में भी होगी। कहाँ ये चीज रुकेगी? ये मामला कहाँ जाके रुकेगा? हम तो 45 और 47 फॉर्म के लिए चीख के थक गए हैं, लेकिन क्या उसके लिए हमें अपनी जानें भी देने पड़ेंगी? खान साहब को तो जेल में बिठा दिया, 13,000 वर्कर्स को जेल में बिठा दिया, लोगों को उठवा रहे हैं। इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे मैं ये बात करती हूँ, जो हुआ उस्मान डार की वालदा के साथ, कासिम सूरी की बीवी के साथ, शरियार अफरीदी की बीवी के साथ, मेरी माँ के साथ, इन सब के साथ, इनके घर वालों के साथ, ये चीज कहाँ जाएगी? सिर्फ नेशनल असेंबली में बैठने के लिए, सीटें पकड़ने के लिए? 40 साल तो आप इन सीटों पर बैठे हैं, आपने क्या तीर मार लिया जो अब मार लेंगे? ये 2 शहादतें जाया नहीं जाएंगी। और ये याद रखें कि जिन लोगों ने असेंबली में झूठे कुरान की कस्में खाई, फॉर्म 47 वालों ने, ये तो कुरान में लिखा हुआ है कि वो हलाक हो गए। आज जब कुरान पे झूठी कसम खाएगी, वो आपका पीछा करेगी। हम तो सिर्फ बेगुनाहों के लिए यहाँ बैठे। मैं इससे ज्यादा बात नहीं करूंगी, मैं हैंड ओवर करूंगी अपने भाई शाहिद खट्टर को, सीमादिया को, फिर उनकी फैमिली आपको फुल डिटेल्स देगी। बट ये याद रखें, ये पीटीआई का मसला नहीं है, पाकिस्तान का मसला है। आप नौजवानों को मारेंगे, शुरुआत 2 से करेंगे, बात 2000 पे जाएगी, ये नहीं रुकेगी। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले मैं तमाम मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ना मैं पार्टी का तर्जुमान हूँ और ना रूटीन में आप लोगों के साथ मेरी बात होती है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने का मकसद मेरा सिर्फ यही है, क्योंकि ये दोनों जो शहादत हुए हैं, ये दोनों नौजवान, इनका ताल्लुक चूँकि इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से रहा है और मैं इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रहा हूँ, और दूसरी बात मैंने इलेक्ट हूँ और मेरा नाम शायद खटक है, ज़्यादा मीडिया के दोस्त जानते हैं। ये देखिए, ये इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की बुनियाद हमने 2007 में हमारे फाउंडिंग प्रेसिडेंट मुराद सईद रहे, और तंजीम को बनाने का मकसद और उनका नारा ही हमारा यही था कि हम जस्टिस, नॉलेज और टॉलरेंस के ऊपर काम करेंगे, कि जितने भी तलबा है हम उनको इंसाफ के दायरे में रहकर उनको बर्दाश्त का दर्द देंगे और उनको मौका फराहम करेंगे कि वो इस मुल्क को लीड करें और वो लीडर्स बने। लेकिन मुराद सईद का एक बहुत फेमस नारा था कि वो मेरे ख्वाब से डरता है। उनको तकलीफ होगी इस बात से कि इमरान खान ने कैसे इन नौजवानों को, जो मिडिल क्लास नौजवान है, वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, वो MNS बन रहे हैं, वो MPS बन रहे हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में 15 से 20 इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के MPS हैं। आज कौमी असेंबली में 6 से 7 इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के MNS बैठे हुए हैं। तो इनको पता नहीं किस बात का डर था कि इन्होंने इन 2 नौजवानों को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया, और इनका मकसद सिर्फ यही था कि हम इन नौजवानों को डरा लें, इनको धमका लें, और कैसे पाकिस्तानी सियासत से हम इन नौजवानों को बाहर करा लें, ताकि ये बड़े बड़े ख्वाब ना देखें, ताकि ये लीडर बनने की जो इनकी स्ट्रगल है वो छोड़ दे। लेकिन मैं उन तमाम कुव्वतों को, उन तमाम लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस प्रेस ब्रीफिंग के जरिए, कि आप लोग हमें डरा तो सकते हैं, आप लोग हमें धमका तो सकते हैं, लेकिन हमारे ख्वाब आप हमसे नहीं छीन सकते। हम लड़ते रहेंगे, आप हमें गोली मारे, आप हमें डराएं, आप हमें धमकाएं। और मैं पूछना चाहता हूं कि इन 2 नौजवानों ने सिर्फ लीडर बनने का ख्वाब देखा था, सिर्फ इनकी ख्वाहिश थी कि हम इस मुल्क को लीड करें, हम इस मुल्क में जद्दोजहद करें, रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल करें, और इनकी ख्वाहिश थी और इनकी नजर थी कि सिर्फ तहरीक इंसाफ ही वाहिद जमात है कि जिसके अंदर अगर आप जद्दोजहद करेंगे,
अगर आप स्ट्रगल करेंगे तो आप लीडर बन सकते हैं, आप मुराद सईद बन सकते हैं, आप शायद खटक बन सकते हैं, आप बीना खान अफरीदी बन सकते हैं। तो सिर्फ इनके ख्वाब को चकनाचूर कराने के लिए इनके ऊपर गोलियां चलाई गई। और चलाई किसने? जिसके हम दावेदार थे कि हमने पुलिस रिफॉर्म्स किए, हमने पुलिस एक्ट का नफाज किया खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस में, हमने अपने 10 साल जाया कराए उन पुलिस के ऊपर जिनको हमने तशख़्ख़ुस दिया, जिनको हमने शनाख्त दी और जिन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जो जदोजहद की, हमने ओनरशिप दी। इमरान खान 15-15, 20-20 लाख के मजमे में इनकी एग्जाम्पल देता रहा कि हमारी पुलिस जो है खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस वो मिसाली पुलिस है। लेकिन बदकिस्मती से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि उस मिसाली पुलिस ने मेरे इन 2 नौजवानों को बेदर्दी से शहीद किया, जिनका कसूर सिर्फ ये था कि वो फॉर्म 47 लेने आए थे, अपना ड्यू राइट लेने गए थे वहां पे RO से। तो मैं अपने लीडरशिप से, अपने वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा से ये अपील करता हूँ कि सिर्फ पुलिस मुलव्विस नहीं थी, बल्कि उन 2 ROs और उन DROs उनका भी एहतसाब हो, क्योंकि वो रिजल्ट नहीं दे रहे थे और उनको डायरेक्शन देने वाले कोई और नहीं होंगे, ROs होंगे, DROs होंगे। और DROs के पीछे जो नामालूम थे, जो नामालूम है, लेकिन अब मैं उनको भी बताऊं कि वो सारे के सारे मालूम है, वो अब नामालूम नहीं रहे। पूरे कौम को पता है कि वो कौन है, किसने ये अहकामात दिए, किसके कहने पे हमारे इन 2 इंसाफ फेडरेशन के वर्कर्स को बेदर्दी से शहीद किया गया। तो हम अपने चीफ मिनिस्टर से इंशाल्लाह हम बात भी करेंगे और उनको इस बात के ऊपर कन्विंस भी करेंगे कि जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, जो भी इनकी शहादतों में मुलव्विस था उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि इनके वालिदैन को, इनके वालिदा को, उनको ये तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन आइंदा किसी की जुर्रत ना हो को किसी के नौजवानों को इस तरह बेदर्दी से शहीद करे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सबके इकट्ठे होने का मकसद ये है, जितने भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि तमाम सूबों से लोग जो हैं बैठे हुए हैं, MNAs, MPAs, और जाहिर बात है हमारे जो विक्टिम्स हैं उनकी फैमिली है यहाँ पर। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि कौम को ये बताना चाहते हैं और पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि जहाँ पर आपने डिवाइड एंड रूल वाला सिलसिला रखा हुआ था ना, कि KPK को आप मारते थे और पंजाब खामोश रहता था, बलूचिस्तान खामोश रहता था, सिंध खामोश रहता था और बाकी खामोश रहते थे, अब ऐसा नहीं होगा। हम एक कौम हैं। अगर हमारे किसी भाई बहन पे, चाहे वो किसी भी सूबे से ताल्लुक रखता है, अगर आप उस पर जुल्म करेंगे, अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, तो पूरा पाकिस्तान खड़ा होगा उन मजलूमों के लिए। आप लोगों ने ये तक ना सोचा कि जिन 2 मासूम बच्चों को आप शहीद कर रहे हैं, जिनको आप मार रहे हैं, वो किसी माँ के बच्चे होंगे, वो किसी माँ के लफ्ते जिगर होंगे। उन्होंने इस कौम का, इस मुल्क का बीड़ा उठाना था आगे जाकर। किस लिए वो निकले थे? अपने मुल्क को, अपनी कौम को, अपने सूबे को कामयाब देखने के लिए, एक बेहतर पाकिस्तान देखने के लिए, एक बेहतर KPK देखने के लिए। लेकिन आपने उनके ख्वाबों के साथ क्या किया? आपने उन्हें मार दिया। आपने दूसरों को ये बताया, आपने दूसरों को ये नसीहत करने की कोशिश की कि अगर तुम खड़े होगे, अगर तुम इस सिस्टम का मुकाबला करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी तरह से कान खोल कर वो लोग सुन लें कि जो हमारे नौजवानों के पीछे पड़े हुए हैं और जो हमारे नौजवानों को मारना चाहते हैं और इस मुल्क का मुस्तकबिल उनसे छीनना चाहते हैं, तो ये कान खोल कर सुन लें कि ये कौम अब एक पेज पर आ चुकी है।